निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। माता जी कह गया जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी रह गया कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। माता जी वांछा कल्पतरू रह गया हाँ वो did I miss that? Actually वो हमने ना अभी तक इंक्लूड नहीं करा. Maybe from next time we will include that वैष्णव प्रणाम मंत्र. हरे कृष्णा माता जी फिर भी हम करेंगे हाँ yes क्या वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंजब की आवाज नहीं आ रही. Hare Krishna. Sorry. Hare Krishna Mataji. Sorry for that. Yes, so I muted everyone. Sorry. All the Vaishnavas were mute, so that I had to mute you. So Sakya Chandika Mataji will do this prayers. Will repeat after Mataji, because there are a lot of children who do not know these prayers of Srimad Bhagavatam, which are basically shlokas from Srimad Bhagavatam itself. So is it fine with everybody? Sakya Chandika Mataji does the prayer and will repeat after Mataji. Okay. Hari Bol. Thank you so much. All of you are very nice, very kind-hearted. Thank you. Mataji, you can do the prayers and you can we'll repeat after you. Okay. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. Hare Krishna. Okay, so today we have a special class today. So last time we saw that how Narad Muni was telling Srila Vyasadeva in very strong words that any book that does not talks about Krishna is useless. It's like a newspaper. It is material. So you should write Srimad Bhagavatam. And he told Srila Vyasadeva about why he should write about the glories of the Lord. So today he will
tell his own life story. But before we start with that, what does Narad Muni do? Do you know, does anybody know what does Narad Muni do? What does he always do? What does he carry? So I will ask you to unmute. If you could just quickly raise your hand one by one. So what does Narad Muni do? Tanvi, do you know Narad Muni क्या करते हैं? Yes, माता जी. माता जी, जो भी सभी वैष्णव और वैष्णवीज हैं, प्रभु जी और माता जी हैं, Yes. मैं उनका नाम नोट डाउन कर रही हूँ जिनकी वीडियो ऑन है. तो लास्ट में हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे जिनकी वीडियोस ऑन रहेंगी और जिसकी ऑफ रहेंगी उनका नाम नहीं लिखूंगी. Hari bol. Hari bol. Okay. Tanvi माता जी, do you know what does Narad Muni does? Narad Muni क्या करते हैं? No, No? ma'am. Okay. Ma'am, but he plays some musical instrument. I don't know the name, but Yes, I know that. उसको वीणा बोलते हैं. Yes, that's right. वो वीणा बजाते हैं. हरि बोल. Okay. Yes, गौरांग प्रभु जी. नारद मुनि क्या करते हैं? Then after you वृंदा माता जी. हाँ जी. Yes. नारद मुनि बजाए बिना राधे बोले करा. रमन राम तो हर रोज हर टाइम बीना बजाते रहते हैं और राधिका रमन नाम लेते रहते हैं या कभी कभार नारायण नाम भी ले लेते हैं. नारायण. Yes. हरि बोल. Yes, yes, yes. वृंदा माता जी. और क्या करते हैं नारद मुनि? आपको बताएं. मैम मुझे भी यही बोलना था. ही ऑलवेज स्पीक नारायण नारायण. Narayan, Narayan. Yes, yes, yes. Okay, Vidit Prabhuji, you want to say something? Yes, go ahead. Evyan Prabhuji, yes, after that. Go ahead, beta. Vidit. Mataji, if anyone has anger, so Narad Muni tells the glories or pastimes of Krishna so that his anger can be, what's that? On. Okay, Yes. Hari bol. Yes, Hari yes, bol. yes, yes. Perfect. Yes, very nice. Yes, yes. Okay. Suhani Mataji. Mataji is a traveling musician and a storyteller. Yes, he's a travel. He's called the transcendental space traveler. You know, when we have to go to the space, we need a space suit, we need a jet, we need a rocket, and then we need a fuel. We even need oxygen. But he is transcendental spaceman. He can travel in many universes, even in spiritual world, material world, just like that, with the blink of an eye. जैसे वो आँख ऐसे झपकते हैं, he can go to spiritual world. He's the space traveler. Hari bol. Yes, Diksha Mataji. Mataji, he teaches the bhakti, and this is the live example of Dhruv Maharaj ji. He tell him to do tapasya and Prahlad Maharaj to teach him bhakti. Yes, he's a guru because he's always talking about Krishna. So he's always preaching about Krishna. Hari 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 Bol. Yes, I know you have a lot more answer, but let's come to the let's kickstart the session today. So just like Narad Muni always sings the glory of the Lord, वो गाते हैं भगवान की glory. So today we will hear to a small song in which Narad Muni is glories is sung. यानी हम आज एक song सुनेंगे जिसमें नारद मुनि के glories को गाया गया है. Are you all ready? Do you want to listen to this song? It's a 1-minute song. You would really like it. Okay? Okay, so let me first do a sound check. I think it's, let me know once the sound is the sound coming? Just give me a thumbs up. नारद जी भाई नारद जी परम वैष्णव नारद जी भाई नारद जी परम वैष्णव नारद जी प्रभु के परम भक्त हैं वो ब्रह्मा जी के सुत हैं जो गुण हैं उनमें अनेक अपार व्यवसाय उनका है प्रचार वीणा की जब तान बजाते भगवान भी मोहित हो जाते लक्ष्मी जिन पे स्नेह है रखती पुत्र की भांति प्रेम है करती नारद जी भाई नारद जी परम वैष्णव नारद जी कृष्ण लीला का गान है करते उनके गुणों का बखान वो करते उनसे बढ़कर गुरु न कोई दिशा बदले जीवन की सोई
Haribol. So did you hear the glories of of Narad Muni ji? Now what we will be doing is we will be telling you about his glorious life, how Narad Muni became Narad Muni. ये हम बताएंगे, right? So Sakhi Chandika Mataji will tell us some beautiful pastimes of, not pastime, actually some beautiful stories of how Narad Muni became Narad Muni, because we all know that Narad Muni is the son of Brahma ji. So वो कैसे बने नारद मुनि, उसकी आज हम स्टोरी सुनेंगे, right? So, Hare Krishna Sakhi Chandika Mataji. यस यस, हरि बोल हरि बोल। आई होप कि सबकी वीडियो ऑन हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। हरि बोल। ओके, तो आज हम स्टोरी सुनेंगे नारद मुनि जी की। तो अभी जो है हम अजी लास्ट वाली एक बार करेंगे। हाँ जी, लास्ट ये वाली मैथनी। हाँ जी हाँ जी। तो आज हम जो स्टोरी करने जा रहे हैं नारद मुनि जी के 3 बर्थ्स के बारे में हम जानेंगे। तो हम किसी को भी जो है किसी के बारे में जब जानते हैं, हमें तभी उनसे क्या होता है, हमें उनसे प्यार होता है, हमें उनसे प्रेम होता है। तो हम नारद मुनि जी को अपना गुरु बनाना चाह रहे हैं, और हमें उनके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम कैसे उनको गुरु बनाएंगे, और कैसे हम उनकी बातें मानेंगे, कैसे हम उनसे प्यार करेंगे। तो इसीलिए जो है आज हम आपको नारद मुनि जी के बारे में बताएंगे, और आप सब जो है ध्यान से उसको सुनेंगे, और उसमें से कुछ बातें जो है हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? 3 बर्थ्स ऑफ नारद मुनि। नेक्स्ट, नारद मुनि, अंगिरा एंड मरीचि। 3 बर्थ जो उनके याद करेंगे हम, नारद मुनि, अंगिरा एंड मरीचि। नारद मुनि जो है आप सबको पता ही, आप सब बता ही रहे हो कि बहुत अच्छे डिवोटी थे क्या, है भी सही, आज भी हैं लेकिन, और वो हर टाइम जो है वो भगवान का ही गुणगान करते रहते थे ऑल द टाइम। और वैसे भी हमने लास्ट चैप्टर में भी करा था, तो उसमें जो है नारद मुनि जी को जो है एक भगवान ने ये वरदान भी दिया था कि आप जो है हर टाइम जो है मेरी लीलाओं का ही गुणगान करते रहेंगे। तो ऐसे ही फर्स्ट स्लाइड से ही हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी ऐसा ही प्रयास करना चाहिए ऑल द टाइम। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सुबह और शाम ही जो है चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, नहीं, 24 आवर्स जो है हमें ट्राई करना चाहिए कि हम भगवान का ही गुणगान करते रहें। तो हम धीरे धीरे, आप हरे कृष्णा संडे स्कूल से कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आप सब ये सीख जाएंगे। आप अभी तो सोच रहे होंगे, अरे हमें स्कूल भी तो जाना है, हमें पढ़ना भी तो है, हमें खेलना भी तो है, हमें ये भी तो करना है, वो भी तो करना है, तो कैसे हम भगवान को याद करेंगे। तो लेकिन आप कनेक्ट रहेंगे तो आप ये सब सीख जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट माता जी। प्लीज बाय डिवोशन द लॉर्ड गिफ्टेड हिम अ वीणा। तो भगवान ने ही जो है नारद जी को वीणा दी थी। आप सब हमेशा देखते हो बिना वीणा के वो कभी नजर नहीं आते हैं, हमेशा वीणा के साथ नजर आते हैं। और हमें क्या दिया है भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है हरि नाम की माला। सॉरी मैं लेकर आती, ये है हमारी वीणा, राइट? ये हमारी वीणा है, हमारी भगवान ने जो हमें दी है, जो हमेशा हमें अपने पास रखनी है। जैसे नारद जी ने कभी वीणा को छोड़ा नहीं, ऐसे ही हमारी जो ये माला है, इसको मतलब कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऐसे ये कहीं भी रख दी, कुछ भी है। हम जितना इसमें इस वीणा को अपने हृदय से लगा के रखेंगे, उतना ही नारद मुनि जी के हम पर कृपा होगी। ठीक है? तो भगवान ने उनको वीणा दी थी कि ये वीणा बजा बजा कर जो है आप जो है हर जगह मेरा गुणगान करोगे। ठीक है? तो नेक्स्ट में जो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने क्या दे दिया था नारद जी को, श्राप दे दिया था। क्या श्राप दे दिया था कि गंधर्व बन जाओ एक कल्प के लिए। एक कल्प क्या होता है, हम तो दिन और रात सुनते हैं, है ना? तो माता जी ने सारा कुछ स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। तो एक कल्प का मतलब होता है 1 डे ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है वो एक कल्प होता है, यानी कि 40 माजी वो कितना है? हाँ, 43 लाख 20 नहीं सॉरी 43 करोड़ 20 लाख 43 करोड़ 20 लाख 20 लाख। हाँ ये होता है
कल्प और मानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात जो होता है, आपको पता है क्या होता है? जब ये सृष्टि जब है, ये सब चल रही है, तो ये ब्रह्मा जी का डे चल रहा है, एक दिन। और हमारा तो एक डे कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। तो अभी जो ब्रह्मा जी का डे टाइम चल रहा है, अभी नाइट है ही नहीं उनकी। जब ये सृष्टि खत्म हो जाएगी तब उनकी जो नाइट स्टार्ट होगी। अभी डे चल रहा है ब्रह्मा जी का, ठीक है। नारद मुनि वॉज देन बोर्न टू द गंधर्वास, क्योंकि उनको श्राप मिला था कि वो गंधर्व में जो है वो पैदा होंगे। तो वो गंधर्व के उसमें पैदा हुए थे। उनका नाम था उपब्रह्मा, उपब्रह्ना, उपब्रह्ना, ठीक है। तो उनका नाम था उपब्रह्ना। आपने कभी सुना ही नहीं होगा, है ना, ये सब बातें। तो इसीलिए जो है आपको इसलिए बताया जा रहा है कि हम नारद मुनि जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाए, ठीक है। नेक्स्ट मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ यस। तो क्या हुआ था, तो जब वो गंधर्वास तो उनका बर्थ हुआ, सबसे पहले गंधर्वास होते क्या है, तो जैसे कि हमारा धरती लोक है, वैसे एक स्वर्ग लोक होता है, ऐसे बहुत अपर प्लैनेट्स होते हैं। उसमें एक प्लैनेट होता है गंधर्व लोक। गंधर्व लोक में जो जितने भी लोग होते हैं ना, वो हमेशा भगवान की ग्लोरीज गाते हैं। सो दे आर एक्सपर्ट इन सिंगिंग, यू नो। सो एक्सपर्टली दे सिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। जैसे हम लोग तो, हमारे पास थोड़े से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक गिटार है, ड्रम है, मृदंगा है, तबला है। वहां पर अनलिमिटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और अनलिमिटेड म्यूजिक है जो भगवान की गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे ही नारद मुनि जो है वो, उनको जैसे श्राप मिला तो वो गंधर्व बने। अब वो जब गंधर्व बने, एक बार गंधर्व जो उनकी गंधर्व लोक है, वहां पर एक सभा का आयोजन हुआ। So there was a program, like all of us have a program in our schools or colleges. जैम सेशन होते हैं जैसे हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में, वैसे ही वहां पर एक प्रोग्राम हुआ। और इस प्रोग्राम में भगवान विष्णु यानी भगवान कृष्णा की ग्लोरीज सब लोग गा रहे थे। सो एवरीबडी वाज सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, एवरीबडी वाज एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। वहां पर सब लोग आए हुए थे, प्रजापतिज आए हुए थे, सारे ग्रेट सेजेस आए हुए थे। एंड इट वाज अ ह्यूज फेस्टिवल काइंड ऑफ थिंग दैट वाज हैपनिंग देयर, जहां पर एवरीबडी वाज सिंगिंग। तो उस फेस्टिवल में नारद मुनि जी भी आए, क्योंकि ही इज ए गंधर्व, उपब्रह्मा जो उनका नाम है। और जब वो वहां पर आए, नारद मुनि वो वेरी वेरी गुड लुकिंग, और उनकी आवाज बहुत अच्छी थी। और वो इतने गुड लुकिंग थे उनके, उनसे बहुत सारी अप्सराएं अट्रैक्ट होती थी। तो उनको बहुत सारे अप्सराएं देखकर उनके पास जाती थी। तो इसको देखकर नारद मुनि का जो बर्थ था उपब्रह्मा वाला, दैट वो बहुत वो बहुत एरोगेंट हो गए। मतलब उनको अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया कि कैसे मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मैं इतना सुंदर दिखता हूँ, और मेरे आसपास हमेशा सारी अप्सराएं होती हैं। तो उस समय क्या हुआ कि वो भगवान की ग्लोरीज गाने के बजाय उन अप्सराओं को इम्प्रेस करने के लिए वो इन अप्सराओं की ग्लोरीज गाने लगे, उन अप्सराओं के बारे में गाना गाने लगे, यू नो। तो कि हाउ कि कितनी सुंदर हो, ऐसे ऐसे करके गाने लगे। अब जैसे उन्होंने ये गाना शुरू करा, तो आसपास जितने भी साधु थे, जितने भी प्रजापति थे, वो सब बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला, ये सभा, दिस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड टू रिमेम्बर गॉड, और तुम क्या गा रहे हो? तुम्हें अपने ऊपर घमंड हो गया है, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं। तो दोबारा श्राप मिल गया उनको, अभी तो मिला था श्राप, अब दोबारा से श्राप मिल गया कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जाओ धरती लोक पर, you go to the planet earth and you will be born as a son of a शूद्र, यानी कि आप एक शूद्र पुत्र के रूप में पैदा होगे। यानी you will be born in a poor family, to a maid servant, son to a maid servant. ठीक है, यहाँ तक is it clear till now? We haven't started with our today's class. This was just a little recap, pre-thing. Is it clear till anybody has any question, any confusion? Perfect. So now let's go back to where Narad Muni and Srila Vyasdev were sitting and they were having discussion. So today's topic, chapter 6, is conversation between Narad Muni and Srila Vyasdev. Okay? Yeah, Vrinda, do you have a question, beta? Yes, okay. माता जी, जो अभी अप्सराज ने उनको दिया था श्राप, वो क्यों दिया था?
हाँ, साधु ने उनको श्राप दिया था। उन्होंने श्राप इसलिए दिया था क्योंकि एक सभा आयोजन हुई थी गंधर्व लोक में। जैसे स्वर्ग लोक होता है वैसे ही गंधर्व लोक होता है। लोक मतलब उनका जो प्लैनेट होता है। और वो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, उस प्रोग्राम में एवरीवन वाज सपोज टू सिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। उस प्रोग्राम में सबको भगवान का गुणगान करना था। लेकिन नारद मुनि क्या कर रहे थे, वो अप्सराओं का गुणगान कर रहे थे। he was singing a song about the apsaras, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग अबाउट गॉड। तो इससे साधु जो थे वहां पर जितने प्रजापति थे वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि ये सभा हमने भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए करी है और तुम अपनी ब्यूटी में इतना एरोगेंट हो गए हो, तुम इतना प्राइड हो गया अपने ऊपर कि तुम अप्सराओं के बारे में गाना गा रहे हो। तो हम तुम्हें श्राप देते हैं, अगर तुम्हें यही करना है, अगर तुम्हें अप्सराओं के बारे में ही गाना गाना है तो तुम जाओ धरती लोक में जाकर गाओ। So he was given a curse to be born as a boy. Understood? Yeah. Okay. Perfect. Gauranga Prabhuji, you want to say something? माताजी, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को श्राप इसलिए दिया था? हाँ, okay. Very nice question. हाँ. So नारद मुनि का जो फर्स्ट बर्थ था वो ब्रह्मा जी के थ्रू हुआ था, तभी हम कहते हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो उनके वो मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी को जॉब मिला था क्रिएशन बनाने का। So for that ब्रह्मा जी ने बहुत सारे ऋषियों को पैदा करा ताकि वो धरती पे आए और वहां पर जाकर they marry and they give birth to beautiful nice children, you know, God conscious children. अब नारद मुनि को तो हमेशा सिर्फ क्या करना था, उनको भगवान से वीणा मिल चुकी थी and he just wanted to, इधर उधर वो घूमना चाहते थे और भगवान का गुणगान ही करना चाहते थे। He didn't wanted to follow the instruction of ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने बोला I am giving you last warning, your job is to go to the earth and increase the population। तो नारद मुनि ने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता धरती में जाकर शादी कर टू इंक्रीज टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन। तो तब ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया कि ठीक है, अगर तुम सिर्फ गाना ही गाना चाहते हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम गंधर्वा बन जाओ 1 कल्प तक, ताकि तुम गाना गा लो, दिल भरकर गाना गा लो, यू सिंग टू योर हार्ट आउट। इसलिए वो श्राप मिला था। ठीक है गौरांग प्रभु जी? हाँ, यस। तो आप, हाँ जी बेटा, बोलो। माता जी, जैसे कि नारद मुनि पहले से नारद मुनि थे या मतलब जब ये सारे लीला के बाद बने नारद मुनि? हाँ, वेरी गुड। तो पहले तो वो वैसे नॉर्मल ऋषि थे, लेकिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, यानी उनको ब्रह्मा जी ने पैदा करा था, बट ही वाज लाइक अ नॉर्मल ऋषि। नारद मुनि बाद में बनेंगे, वो हम आज देखेंगे कि वो नारद मुनि कैसे बने। ठीक है, तो अब जो नारद मुनि है, ही इज लाइक 2 बार उनको श्राप मिल गया, तो यानी कि देयर इज समथिंग दैट ही हैज टू लर्न। कृष्णा उनको बोल रहे हैं आपको कुछ सीखना है, राइट? सो वो आज हम देखेंगे इनको क्या सीखना है। हाँ जी। और एक और चीज थी कि जो नारद मुनि का जो नारद मुनि करते हैं, उसके लिए एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं। नारद मुनि कैटलिस्ट का काम करते हैं कि जैसे कि अगर रावण मतलब जैसे कि कंस को बोला कि तुम ये 5 उंगलियां पांचवी कौन सी 8 बद्दों को मारा नहीं तो मारते नहीं, तो पैदा करते ही नहीं कृष्णा को ज्यादा। परफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नारद मुनि क्या करते हैं, वो भगवान की जो लीला है उसमें हेल्प करते हैं। वो ना, जैसे उन्होंने कंसा को बोला कि आपको कैसे पता है कि 8वां कौन सा 8वां होगा, हो सकता है पहला वाला 8वां। भगवान विष्णु तो कुछ भी कर सकते हैं, ही इज गॉड, ही कैन चेंज लॉज, तो इसलिए ऐसे वो इन्होंने ना, ही हेल्प्स इन कृष्ण लीला। वो चाहते हैं कि भगवान की लीलाएं भगवान जल्दी प्रकट हो और जरे सारे दुष्टों का फटाफट नाश हो। तो ही ट्राइज टू स्पीड अप कर देते हैं चीजों को। ठीक है, यस, ओके, थैंक यू बेटा। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉन्वर्सेशन बिटवीन नारद एंड व्यासदेव। और इस कॉन्वर्सेशन में जो नारद मुनि है वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे श्रीला व्यासदेव को। So we'll go back to the same place जहाँ पर नारद मुनि और व्यासदेव जी बैठे हुए थे। तो नारद मुनि ने बोला कि अब मैंने आपको ये तो समझा दिया कि आपको श्रीमद् भागवतम लिखना है, मैंने आपको ये भी समझा दिया कि जब कोई भी भगवान कृष्ण की ग्लोरीज को सुनता है, श्रवणम करता है, जैसे आप सब लोग कर रहे हो, तो उसकी जीवन में परिवर्तन आता है and he becomes really happiest। और अब ये मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ अपने लाइफ एग्जाम्पल से कि मेरे साथ क्या हुआ। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने पिछले जन्म में क्या था। तो व्यासदेव जी बहुत खुश हो गए। जैसे सखी चंद्रिका माता जी ने बताया, जब हम किसी को गुरु मानते हैं
हमें उनके बारे में जब तक पता ना हो तो हमारे हृदय में उनके प्रति प्यार नहीं बढ़ता, और प्यार की वजह से हम उनकी जो इंस्ट्रक्शंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो श्रीला व्यास देव जी जो है उनके गुरु थे नारद मुनि जी, तो वो जानना चाहते थे, तो कहते थे यस यस आई रियली वांट टू हियर अबाउट योर लाइफ, आप प्लीज हमें बताइए कि क्या हुआ। सो नारद मुनि जी ने बताया कि मैं अपने पिछले जन्म में, इन माय प्रीवियस बर्थ, आई वाज द सन ऑफ अ मेड सर्वेंट, यानी कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था, और मेरी माँ जो थी वो हर घरों अलग अलग घर में जाकर काम कर कर हमारा पालन पोषण करती थी। मेरे फादर नहीं थे, मैं और मेरी माँ ही थी सिर्फ। और जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तब भी मैं बहुत शांत था, एक नॉर्मल बच्चों की तरह उद्दंड नहीं था, नॉटी नहीं था। आई वॉज वेरी क्वाइट, आई वॉज वेरी आई वॉज नॉट एट ऑल नॉटी, और मैं सिर्फ उतना ही बोलता था जितना बोलने की जरूरत होती थी, उससे ज्यादा अधिक बोलता भी नहीं था। अब एक बार की बात है, जिस गांव में नारद मुनि और उनकी मदर रहती थी वहां पर कुछ साधु आए। अब जो साधु होते हैं, सेजेस होते हैं, उनका मेन काम क्या होता है कि वो वो हर जगह घूमते हैं और भगवान की ग्लोरीज को गाते हैं, यानी कि दे सिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। और वो हर किसी को भगवान का ज्ञान देते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है कि whoever preaches my knowledge, जो मेरे बारे में लोगों को बताता है, he is most dear to me। ये हमने भगवत गीता में पढ़ा, राइट। और उनको ये भी पता होता है कि ये जो भगवान का ज्ञान है ये सर्वोच्चम है, इट इज दी हैप्पी टॉप मोस्ट। एंड व्हेन पीपल हियर अबाउट गॉड दे विल बिकम दी हैप्पीएस्ट। तो दे वांटेड टू डू, द सेजेस होते हैं, साधु होते हैं, वो दे बेसिकली वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीबडी। सो दे जो साधु होते हैं वो हर जगह घूमते रहते हैं भगवान की ग्लोरीज गाते हुए नारद मुनि की तरफ, राइट। तो जब बारिश के 4 महीने आते हैं, सो वी हैव रेनी सीजन, जुलाई अगस्त सितंबर। अब ये 4 महीने कौन से हैं? ये 4 महीने हिंदी कैलेंडर वाले 4 मंथ हैं। तो हिंदी कैलेंडर वाले 4 मंथ जो हम जून के टाइम पर स्टार्ट हो जाता है, तो जब बारिश के 4 महीने आते हैं तो जो साधु जहां पर पहुंचते हैं वो वहां पर रुक जाते हैं, ओके। उससे आगे ट्रैवल नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत बारिश होती है, तो हर जगह कीचड़ होता है, एंड इट इज नॉट एन आइडल टाइम टू ट्रैवल। बारिश कभी भी आ सकती है। अब साधु के पास घर तो होता नहीं है, और जब बारिश आएगी उनको वो कहाँ पर होंगे, किस शेल्टर में होंगे, वो भी नहीं पता होता। इसलिए जब बारिश के 4 महीने होते हैं, ये हम बहुत सारी जगह देखेंगे आगे भी। अगर किसी ने रामायण भी सुनी है तो रामायण में भी जब भगवान राम सुग्रीव के पास रुकते हैं तो वो 4 मंथ ऑफ रेनी सीजन ही होते हैं, तभी वो 4 महीने तक वही सुग्रीव के पास रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि 4 महीने, बारिश के 4 महीने में हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। यस, तो आई नो गौरांगा इज नॉटिंग यस यस। तो ये साधु वहां पर रुक जाते हैं उस विलेज में। अब क्योंकि वो विलेज में रुक जाते हैं और वहां पर जो छोटा सा बेबी होते हैं 5 years ओल्ड, नारद मुनि का जो प्रीवियस बर्थ होता है, और उनकी मदर, उनको मौका मिलता है इन साधुओं को सर्व करने का, उनकी सेवा करने का। सो बाय द मर्सी ऑफ, सो नारद मुनि कहते हैं कि बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड आई पर्सनली सर्व द सेजेस। तो वो साधुओं की सेवा करते हैं, जो भी वो साधु उनको बोलते हैं कि हमारे लिए पानी ले आओ, या हमारे लिए जगह साफ कर दो, या वहां से घास ले आओ, हमारे हट को रिपेयर कर दो, इस बर्तन को साफ कर दो, जो भी वो साधु बोलते हैं वो सारी सेवा नारद मुनि करते हैं विथ फुल हार्ट। और ऐसे ही एक दिन जब वो साधु आर वेरी प्लीज्ड विद नारद मुनि, तो वो नारद मुनि को प्रसाद देते हैं। So by the permission of the sages, उन sages की permission से, and by the mercy of the sages, Narad Muni gets to eat the prasadam or the remunerance. So prasadam का magic क्या होता है? Do you know that कि भगवान को जब हम ऑफर करते हैं भोगा और उसके बाद हम भोगा खाते हैं, उसका मैजिक क्या होता है? It is amazing. तो जब वो प्रसादम पाते हैं नारद मुनि जी, और नारद मुनि जी खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, नारद मुनि कह रहे हैं कि when I ate that prasadam, something very special happened. All my sins were disappeared from my heart and my heart became pure. And then he said, after that I kept on hearing the brahmanas. तो अब जो brahmanas हैं, जो ऋषिस हैं, साधु हैं, उनका काम क्या है? They sing the glories of the Lord. वो कथा करते हैं, भगवान की कथा करते हैं और भगवान के भक्तों की कथा करते हैं।
तो ऐसे ही वो भगवान की भक्तों की कथा कर रहे थे, भगवान के बारे में कथा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, who are we body or are we soul, like we did in Bhagavad Gita. और नारद मुनि जो छोटे से बॉय थे, he was listening very attentively to all of this, like all of you are attentively listening. So and he was submissively listening. And then when he did that, जब उन्होंने सुना साधुओं को, he realized that I am not this little boy, I am not this body, I am not even this mind, I am the soul within. यानी मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मेरा मन भी नहीं हूँ. मेरा मन कर रहा है ये करने का, मेरा मन ये कर रहा है नहीं करने का, मेरा मन कर रहा है पढ़ाई नहीं करना, मेरा मन कर रहा है स्कूल नहीं जाना, लेकिन मैं मन नहीं हूँ, मैं तो आई एम सोल, राइट. सो हमें मन की नहीं, हमें अपने इंटेलिजेंस की सुननी चाहिए और सोल की सुननी चाहिए. वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर द सोल. So he got this very important knowledge. Like all of you also got this knowledge. Do you remember in which chapter of Bhagavad Gita we got this knowledge? Sorry. Yes. Okay. Yes, Gaurang Prabhuji. In which chapter did we got this knowledge in Bhagavad Gita? Chapter 2. Chapter 2. Yes. That's yes. Diksha Mataji. Yes, Vidit Prabhuji. Yes, Mataji, in chapter number 2, we get the knowledge that we are not body, we are the soul. Yes, that's right. Yes, and Vidit Mataji, Prabhuji. I have a doubt, can I ask? Yes, beta, go ahead. Yes. Mataji, you said that Gandharvas are the people who sings the glory of Lord. Yes. But Mataji, where means there are planets, then Gandharvas, then after that who are there? हाँ, so there are 9 planetary systems. उसके बारे में भी हम जो प्ले कर रहे हैं ना, we will discuss over there. There are 9 planetary systems. सबसे ऊपर ब्रह्मलोक होता है. ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, ऐसे ही बीच में गंधर्व लोक भी आता है. ठीक है? They're above us. वो लोग हमसे ऊपर होते हैं. Yes, Vidit Prabhuji, you want to say something, beta? Mataji, I was just saying that you told about chapter 2. So in chapter 2, it tells we are the soul, not the body, but we should equally take care of the soul. The body, yes. Of the body. Yes. So we saw that Narad Muni said, Suta Goswami said that we should take care of both the body and the soul, but soul is more important. Yes, Aru Prabhuji, you want to say something, beta? Yes, Mataji, I want to ask, ma'am, as you said that the Brahmaji caused Narad Muniji for one kalpa, which is about 42 crore 20 lakh years. So, Mataji, how many Janma Narad Muni has taken? Like we say that there are 7 births. He's taken 3 births only. So, because his first birth was as son of ब्रह्मा जी. अब ब्रह्मा जी के बर्थ के बाद उनको अर्थ में आना था, पर वो अर्थ में आए नहीं. उन्होंने बोला नो, आई डोंट वांट टू गो. सो उनको कर्स मिला, वो बने गंधर्व बने. तो गंधर्व बनने पर भी कर्स मिल गया, तो वो बन गए एक मेड सर्वेंट. अब ये उनका 3rd बर्थ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है? उसके बाद देखते हैं क्या होता है. दिस इज वेरी नाइस. यस, गौरांग प्रभु जी. यस माता जी, जो भी आप जैसे कि नारद मुनि और व्यासदेव की फोटो आती है जिसके अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ. वहाँ पे सारे पहाड़ उल्टे क्यों होते हैं? पहाड़ और ट्री सारे उल्टे हुए नोटिस कर रहा हूँ देर से. वो किस लिए है? रीजन क्या है? हाँ, सो बेसिकली वो सो नारद मुनि जी जो है वो रिवर सरस्वती के पास मेडिटेट कर रहे होते हैं. तो इनका इनका हर्मिटेज होता है, उनका आश्रम होता है. तो वहां की पिक्चर है ये. तो वहां पर रिवर सरस्वती, आई विल हैव टू फाइंड आउट एग्जैक्टली कहाँ पर है, बिकॉज सखचंद एक बार माता जी, डू यू नो रिवर सरस्वती कहाँ से स्टार्ट होती है? जो शुरू होती है ना, वो पहाड़ों से ही शुरू होती है. I will find it out. माता जी जो रिवर सरस्वती है ना, वो माना गया है कि वो पाकिस्तान की जो साइड्स है ना, वहाँ से स्टार्ट होती थी और वो राजस्थान से बहकर आती थी. हाँ, yes, I will find that out कि exactly कौन सी जगह है. पर it was said कि वहाँ पर जो रिवर सरस्वती जो आती है, वो पहाड़ों से ही आती है और वहाँ पर उनका आश्रम था. नहीं माता जी, मैं पूछ रहा हूँ वहाँ पे जैसे कि पहाड़ ना उल्टे से थे. फिर एक बार आप उसकी फोटो दिखाओगे? अच्छा, वो उल्टे, मे बी वो कुछ एडिटिंग का इश्यू होगा, अदरवाइज
ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ना, ये नहीं रिफ्लेक्शन है, ये रिवर सरस्वती में पहाड़ों के रिफ्लेक्शन है। आप देख पा रहे हो ये नीचे, ये उनकी इसलिए उल्टे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भी उल्टे और पहाड़ भी उल्टे, क्योंकि ये रिवर नदी के पास बैठे हैं वो, इसलिए। ठीक है। हाँ जी। और सेकेंडली एक माता जी पूछ रही थी ना कि वो मतलब वो 42 करोड़ 20 लाख कल्प, हाँ कल्प, हाँ यस यस। तो फिर मैंने ये सुना था कि स्वर्ग लोक के अंदर 1 जून का दिन होता है, वो होता है हमारे 6 मंथ्स। हाँ तो यस। फिर वो स्वर्ग लोक से तो ऊपर ही अगर गर्भ लोक, तो हाँ फिर यस 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 और ज्यादा ही होगा। Yes, that's right. और हायर प्लैनेटरी सिस्टम, यस यू राइट गौरांग प्रभु जी, जो हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं वहां का टाइम हमारे अर्थ के टाइम से डिफरेंट होता है। सो अर्थ का टाइम बहुत स्लो होता है, वहां पर फास्ट होता है, वहां का टाइम इज वेरी स्लो। सो वहां पे पीपल हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ, राइट? So all of that is mentioned also in Srimad Bhagavatam. We'll cover that slowly. Okay? So फिर नारद मुनि को ये ज्ञान मिला कि हम ये शरीर नहीं है बल्कि हम ये आत्मा है। So after that, Narad Muni still kept on serving the Brahmanas without listening to his senses. ठीक है, उन्होंने भगवान को, जो ब्राह्मणास है उनको, उनकी सेवा करते रहे और बिना, उन्होंने अपने सेंसेस की नहीं सुनी। And what do we mean by listening to our senses? कि जैसे कभी मम्मी बोलती है कि बेटा एग्जाम आ गया पढ़ लो, तो हमारे सेंसेस क्या बोलते हैं, हमारा दिमाग हमें क्या बोलता है? शरीर माता जी, हमारा दिमाग हमें क्या बोलते हैं जब हम मम्मी कहते पढ़ लो बेटा कल एग्जाम है, पढ़ लो पढ़ लो? तुम्हारे दिमाग बोलता नहीं एक मूवी और देख लेते हैं मम्मा, एक बार थोड़ा सा व्हाट्सएप पे और चैट कर लेते हैं थोड़ा सा और, राइट? Who wants to say हमारे दिमाग, what does our mind tells us when we are trying to do anything? श्रेया माता जी, हमारा दिमाग हमें क्या बोलता है? Yes वृंदावन, yes go ahead. अभी थोड़ा सा और टाइम बचा है, थोड़ा सा करने दो। हाँ यस थोड़ा, अभी तो बहुत टाइम है मम्मी, अभी 8 घंटे है, मैं पढ़ लूंगी, मैं तो फटाफट 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, अभी मैं बाद में कर लूंगी, राइट? यस वृंदा माता जी, हाँ यस बेटा, यस गो अहेड। माता जी हम यही सोचते कि तो बहुत दिन है और अब तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। हाँ यस हरी बोला, अभी तो पूरी लाइफ है। माता जी जब मम्मी ऐसे कहती हैं तो हमें होता है कि मम्मी अब इतना टाइम बचा है, हम थोड़ी देर में और कर लेंगे, मुझे बस 2 मिनट्स और दो, 5 मिनट्स और दो। यस माता जी। एंड जब हम उठ रहे होते हैं सुबह तो माया कहती है कि 16 माला तो आराम से हो जाएंगी, 15 मिनट और सो जाओ, फिर 2 घंटे हो जाते हैं। यस सो माया और हमारे सेंसेस हमें बोलते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी लेट्स एंजॉय, कुछ खा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, अभी सो जाते हैं, टीवी देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं। तो ये हमारे सेंसेस हमें माया में एंगेज रखते हैं। लेकिन जो नारद मुनि, जो 5 इयर्स के बॉय थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने सेंसेस को बोला नो। उन्होंने क्या बोला? नहीं। उन्होंने अपने सेंसेस को बोला नो, आई विल सर्व द ब्राह्मणास and I will not listen to the mind or my senses, क्योंकि मैं mind नहीं हूँ, I am not the mind, I am the soul and I need to feed the soul. soul को खाना देना जरूरी है, and one of the method of soul feeding the soul is by serving the devotees, right? So फिर then नारद मुनि बोलते हैं that I had full faith in the brahmanas. As the brahmanas were leaving, so after 4 months, the 4 month was over and the brahmanas were leaving. So 4 महीने खत्म हो गए थे रेनी सीजन के और टाइम आ गया था कि ब्राह्मणास को अब जाना था. So as the brahmanas were leaving, they gave a very important confidential knowledge to that little 5-year-old boy. तो उन्होंने बोला कि अब उन्होंने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दी. क्यों दी? बिकॉज आई हैड फुल फेथ इन द ब्राह्मणास, और मैंने उनको सर्व करा था पूरे दिल से, फुल फेथ के साथ. अब श्रील व्यासदेव ने बोला गुरुदेव प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट सीक्रेट, प्लीज आप मुझे बताइए वो क्या सीक्रेट है जो उन्होंने आपको बताया. सो नारद मुनि ने बोला द सीक्रेट इज दैट डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड विल मेक अस द हैप्पीएस्ट. कि जब हम भक्ति करेंगे तो हम सबसे ज्यादा खुश होंगे. तो श्रील व्यासदेव ने बोला पर ऐसा कैसे है कि जब हम भक्ति करेंगे तभी हम सबसे ज्यादा खुश होंगे. तो नारद मुनि ने उनको बताया that you see whatever we do in this material world binds us to this material world.
तो हमने चैप्टर 3 में हमने एक न्यूटन्स लॉ को हमने डिस्कस करा था. डू यू रिमेम्बर वो कौन सा न्यूटन्स लॉ था? खुशी माता जी, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज दैट न्यूटन्स लॉ जो हमने करा था? Yes, Mataji. That Mataji, every action has an opposite reaction. Yes, every action has an equal and opposite reaction. यानी कि जो हम कुछ भी करते हैं इस वर्ल्ड में, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इट हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हम अगर हम बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा होगा, अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा. लेकिन उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए हमें बार बार जन्म कर लेना पड़ता है. उस बुरे रिजल्ट को भी एक्सेप्ट करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है. उस अच्छे रिजल्ट को भी एक्सेप्ट करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है. राइट? तो इससे क्या होता है, हम ये बंध जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड में. एवरी एक्टिविटी दैट वी डू बाइंड्स अस. राइट? फिर नारद मुनि उनको बताते हैं पर अगर हम कुछ काम भगवान के लिए करते हैं, इफ यू डू एनी वर्क फॉर दिस सर्विस ऑफ कृष्णा, राइट, एंड हिज प्योर डिवोटीज, तो हम क्या होते हैं, हम भगवान से बंध जाते हैं. सो वी व्हाट हैपेंस इज इट बाइंड्स अस और इट ब्रिंग्स अस मोर क्लोजर टू गॉड. तो हमें भगवान के और पास लेकर आता है. राइट? और व्हेन दैट हैपेंस देन हमारे जो मटेरियल बॉन्डेज होते हैं वो टूट जाते हैं. आर ऑल द रिएक्शंस, एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ आवर मटेरियल एक्टिविटीज, वो सब टूट जाते हैं व्हेन वी ट्राई टू कम क्लोजर टू कृष्णा. ठीक है? दैट मीन्स हम फ्री हो जाते हैं एंड वी कैन गो बैक टू गोलोक वृंदावन. सो शिला व्यासदेव कहते हैं, ओह थैंक यू सो मच नारद मुनि जी, आपने हमें इतना इम्पोर्टेंट सीक्रेट बताया. ठीक है? नाउ लेट मी आस्क यू वन थिंग. तो अभी तक हमने देखी अभी तक की स्टोरी, अभी आगे भी स्टोरी है, स्टोरी हैज नॉट फिनिश्ड. अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि नारद मुनि की स्पिरिचुअल जर्नी, कि नारद मुनि 5 इयर्स के बॉय थे, तो उन्होंने कुछ कुछ एक्टिविटीज करी, और एक्टिविटीज करने के बाद आखिरी में जब जो सेजेस वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने उनको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी. ठीक है? उनको इंपॉर्टेंट नॉलेज दी. अब ऑन माई स्क्रीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वो एक्टिविटीज लिखी हुई है. अब आपको ये बताना है कि you have to put these activities in the right order, कि सबसे पहले क्या हुआ था. ठीक है? I will read out these activities, you let me know सबसे पहले क्या हुआ था. Okay. So some of the activities are heard from the sages confidential knowledge. So जो नारद मुनि थे, जो 5 years का बॉय था, उन्होंने सुना साधु से confidential knowledge सुनी, और he served them, he ate the remunerants, यानी प्रसादम पाया. He took instructions from them. He received the causeless mercy. He had a strong faith. He was well behaved, and he controlled his senses. यानी उन्होंने अपने senses को control करा. तो अब हमें इसको right order में डालना है. तो आप बता सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ था इस activity में. So all of you can just say once at a time. So Diksha Mataji, सबसे पहले activity क्या थी? Yes, Mataji. Mataji, the first activity was that Mataji, this when he was eating prasadam, I think that उससे पहले भी तो प्रसादम तो उन्होंने सर्विस करने के बाद खाया था. yes, सबसे पहले वो क्या थे? He was a Mataji, first of all, he Mataji, I am not able to understand this because first was that 8 prasadam one. Okay, no worries. So Visit Prabhuji, you want to tell what was the first activity? No, first was not 8 prasadam one. Mataji, well behaved. Yes, so सबसे पहले we got to know from the story that he was a well behaved boy, right? Perfect. Okay. Bhavya Mataji, what was the second thing that happened in his life? So सबसे पहले he was a well behaved boy. What happened after that? Then he has a strong faith. Strong faith. Okay, strong faith. ठीक है, हम कह सकते हैं. ठीक है. What is the next step? Nishika Mataji. Yes. Do you know what happened after that? Them. Served them. He served the devotees. Yes.
So he was well behaved. He served the devotees, and Sanvi Mataji, do you know what happened after he served the devotee? Ma'am, after that he उन्होंने क्या पाया था? ma'am, he ate the remnants. Yes, he got the prasadam. Yes, that's right. Hari bol. Okay. What else? उसके बाद क्या करा था? Avni Mataji, do you know what happens after he ate the prasadam? Yes, Mataji. After that, he took the instructions from the Brahmanas. हाँ, okay. Yes, he actually took this instruction last में आता है. So he was able to control his senses. And he also kept on hearing the confidential knowledge. Okay, let me show you the actual order. So सबसे पहले he was a well-behaved boy. And because he was a well-behaved boy and he got the causeless mercy of Krishna, he got an opportunity to serve the devotees. उसके बाद क्योंकि उन्होंने devotees की सेवा करी, he got an opportunity to eat the prasadam. अब उन्होंने प्रसादम पाया, उसके बाद उन्होंने कॉन्फिडेंशियल नॉलेज सुनी. कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? भगवान के दिव्य ज्ञान सुना. ही हर्ड अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड. और आफ्टर दैट ही स्टिल कंट्रोल्ड हिज सेंसेस. उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने मन की नहीं सुनूंगा, आई विल लिसन एंड सर्व द डिवोटीज. मैं और सुनूंगा और डिवोटीज को सर्व करूंगा. एंड बिकॉज ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ, सो जब वो सेजेस जा रहे थे, बिकॉज ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ in the sages, he got the instructions. तो उनको instructions मिली 1 2 3 4 5 6. आपको कैसे साधना करनी है, आपको कैसे भगवान को याद करना है, आपको क्या करना चाहिए, what is your real identity. तो उनको वो instructions मिली, तो उन्होंने वो instructions को adopt करा. ठीक है. So this is basically this is a small flow कि कैसे वो from a well behaved boy he got instructions from the sages. हाँ जी बेटा. Yes भव्या माता जी. Yes, Mataji. Mataji, like fifth point, when Brahmanas was leaving, ma'am, then Brahmanas gave knowledge to the Narad Muni. But Mataji, why this point, fifth point, is on the last point? But can we? Yes. I'll explain it. हाँ. So no, when the Brahmanas were leaving, they gave instructions कि अब हम जा रहे हैं, अब आपको क्या करना है. लेकिन जो उनको नॉलेज है वो पहले ही मिल गई थी. रिमेम्बर हमने पहले देखा कि जब वो नारद मुनि ब्राह्मणास को सुन रहे थे, तब उनको ये रियलाइज होता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है. राइट. See here, he was hearing, so that is a confidential knowledge. The confidential knowledge is to understand that we are not this body, but we are the soul. क्योंकि अगर हम अपने बॉडी से ही रिलेट करते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा व्हाट इज आवर ट्रू आइडेंटिटी और हमारा पर्पस क्या है. राइट. इसलिए वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज पहले आएगा कि उनको कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मिली एंड ही हैड फुल फेथ इन द ब्राह्मणास, देयरफॉर ही वाज एबल टू टेक इंस्ट्रक्शंस. अगर आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप उनकी बात नहीं मानोगे ना. अगर कोई स्ट्रेंजर आपको आकर बोलेगा कि आप ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हो जाओ, तो आप नहीं खड़े होगे ना. आप बोलोगे हु आर यू, व्हाई विल आई लिसन टू यू, है ना. I should have strong faith in somebody to take instructions. So he had the strong faith, therefore he took instruction. Yes, beta. Yes, Mataji. Mataji, when Narad Muni, when Brahmanas gave instructions to Narad Muni when they were leaving, tell to Vyasdev. तो माताजी उनको जो ब्राह्मण कहता थी अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे जब भी हम खुश रहेंगे. लेकिन ये भी तो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ना. हाँ, लेकिन जो उनको कॉन्फिडेंट, दैट इज ऑल्सो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. दैट इज राइट, यू राइट, दैट इज ऑल्सो अनदर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. पर जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज उनको पहले, जो नॉलेज पहले मिली, दैट वाज आल्सो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. आप सही कह रहे हो कि जब वो ब्राह्मणा जा रहे थे तब उन्होंने ब्राह्मणा से जाते जाते उन्होंने बोला कि भगवान की सेवा करोगे देन ओनली यू विल बी द हैप्पीएस्ट. तो दैट इज आल्सो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. और फिर उन्होंने बताया कि कैसे करना है. ठीक है. तो माताजी हम लास्ट वाला पॉइंट फिफ्थ पॉइंट की जगह लिख सकते हैं. आप 2 बार लिख सकते हो. यहाँ पे भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी मिली और यहाँ पे भी लिख सकते हो. यू कैन राइट 2 टाइम्स. ठीक है. ठीक है. यस सानवी माताजी, यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? Yes, ma'am. Can I leave? Actually, have class. हाँ, yes, sure, beta, definitely. Hare Krishna. Okay. So when Narad Muni got, when he went through his spiritual journey, what did he gain? So what Narad Muni gained was that Narad Muni's heart was cleansed.
So Narad Muni himself said, Hare Krishna, sorry. So Narad Muni said that when I heard, my heart was cleansed and I automatically adapted the qualities of the sages. So हमने भगवत गीता में पढ़ा था divine qualities और demonic qualities. तो वो जो sages थे उनमें divine qualities थी, तो वो qualities automatically मेरे पास आ गई क्योंकि मैंने साधु संग करा. So very important, when we associate with a person or the kind of person we associate with, उनकी qualities हम adapt कर लेते हैं. हम जैसे लोगों के साथ associate करते हैं वैसे बन जाते हैं. अगर लेट्स से हमें चोरी करना सीखना है तो हम चोरों के साथ एसोसिएट करेंगे, राइट? अगर हमें लेट्स से वी वांट टू बी गुड डांसर्स, तो वी विल बी इन द कंपनी ऑफ डांसर्स ओनली, ताकि हम उनकी क्वालिटीज को अडेप्ट कर सके. अगर हम वी वांट टू लर्न सिंगिंग, सो वी शुड बी टेकिंग द कंपनी ऑफ सिंगर्स, ताकि हम अच्छे से गा सके. ऐसे अगर लेट्स से इफ आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, सो आई विल टेक द कंपनी ऑफ दोस काइंड ऑफ पीपल, ताकि मैं उनकी क्वालिटीज अडेप्ट कर सकूं. अब नारद मुनि यानी वो छोटे से 5 years बॉय ने किसकी संग करा? साधु का संग करा. तो उन्होंने उनकी जो सारी क्वालिटीज थी, डिवाइन क्वालिटीज, वो नारद मुनि को मिल गई. सो नारद मुनि फर्दर कह रहे हैं कि आई देन मूव आउट ऑफ मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस एंड केम इनटू मोड ऑफ गुडनेस. तो हम भगवत गीता में हमने 3 मोड करे थे, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, और मोड ऑफ गुडनेस टॉप मोस्ट होता है, राइट? तो फिर नारद मुनि ने बोला कि आफ्टर एसोसिएटिंग विद हिम, जब मैंने साधु संग करा तो मैं मोड ऑफ गुडनेस में आ गया. वाओ, वेरी नाइस ना, वेरी ब्यूटीफुल. देन ही आल्सो सेड दैट आई रियलाइज दैट आई हैव नथिंग टू डू विद द बॉडी एंड द माइंड. यानी ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये मन भी मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ आत्मा हूँ. इसलिए मुझे आई शुड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय गुरु, or like all of us should listen to the instructions of our parents and our teachers, right? And then he became attached to Krishna. So ये सारे उनको benefit मिले in their journey when he was going through his journey. Your voice. हाँ, Hare Krishna. Sorry, actually electricity चली गई, so my internet dropped off. You're able to hear me now, beta? No, Mataji. Yes, now you're able to hear? Now it's that. Okay, perfect. Yes. Let me share my screen again. Let me know if you're able to see my screen. मेरी screen दिखाई दे रही है बेटा? Is everyone able to hear me and is everyone able to see the screen? Yes. Yes, Okay. Mataji. Perfect. Okay, so electricity is gone. I'm connected to hotspot, so हो सकता है I बीच want में. to ask something. Can I हाँ, ask? yes, beta, sure, definitely. Ma'am, what do we have to make the Yes, then Nishika Mataji, say that. Ma'am, I'm saying that today we have to make the drawing. Yes, we have to. We'll come to that. It's very nice, very beautiful. I will show you. Okay. Okay, ma'am. Okay. Now, what we need to do is then व्यासदेव, तो उन्होंने व्यासदेव ने आगे और क्वेश्चंस पूछे. तो व्यासदेव ने बोला थैंक यू सो मच कि आपने बताया कि जब आप छोटे 5 years के थे और जब साधु आए तो उन्होंने आप साधु से क्या क्या सीखा. पर अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब वो साधु चले गए तब क्या हुआ? You know, what did you do? आपने अपना टाइम कैसे स्पेंड करा? How did you pass your time and how did you follow the instructions of the sadhu? जो साधु ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी उसको आपने कैसे फॉलो करा? And how do you still remember? ऐसा कैसे है कि आपको अपना पिछला जन्म याद है? नॉर्मली हमें अपना पिछला जन्म याद नहीं होता, तो ऐसा कैसे है कि आपको अपना पिछला जन्म याद है? सो नारद मुनि इसका उनको आंसर करते हैं, राइट? सो नारद मुनि उनको बताते हैं कि जब वो साधु चले गए थे तो एक बार की बात है कि जो मेरी मदर है वो गाय का दूध धोने गई, यानी कि शी वेंट टू मिल्क द काउ इन द नाइट. और उस समय क्या हुआ कि एक सांप ने आकर उनको पैर पर डस लिया. अब क्योंकि उनको सांप ने पैर पर डस लिया तो मेरी मदर की उस समय मृत्यु हो गई. अब मेरे पास मेरी मदर के अलावा और कोई नहीं था, तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया.
तो तब मुझे याद आया कि अब समय है कि मुझे जो साधु ने इंस्ट्रक्शंस दी है मुझे उनको फॉलो करना है. Now I should implement what I have learned from the sages. So he said, then I started moving towards the north. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो जगह छोड़ दी और उत्तर दिशा में चलना शुरू कर दिया. और वो वहां से चलते रहे चलते रहे चलते रहे. और जब वो चलते रहे वो सबसे पहले वहां पर पहुंचे, एक गांव में पहुंचे. और गांव को पास करा, बहुत सारे टाउन्स थे, विलेजेस थे, उसको पास करा. फिर वो और चलते रहे चलते रहे. उसके बाद उनको बहुत सारे खेत मिले. अब खेत को पास करा, फिर भी वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे. और फिर एक बार वो बहुत सुंदर फ्लावर गार्डन वैली में आए, यानी कि ऐसी वैली में जहां पर हर जगह बहुत सुंदर फूल थे. फिर भी वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे. देन ही पास थ्रू डेंस फॉरेस्ट, यानी बहुत ही घने जंगल से गुजरे जहां पर इतनी सारी गुफाएं थी और खतरनाक जानवर भी थे. पर फिर भी वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे. और फिर वो पहुंचे एक एक पहाड़ के बीच में वैली होती है, वहां पर पहुंचे जहाँ बहुत सुंदर लेक्स थी, बहुत सुंदर लेक्स जहाँ पर बहुत सुंदर लोटस फ्लावर्स थे. और वो देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन फिर भी वो चलते रहे. अब कुछ और चलने के बाद वो बहुत थक गए. तो नारद मुनि ने बोला, देन after traveling all this time I was exhausted, I was really tired and I was also feeling hungry, so I stopped near a lake. तो एक लेक के पास, तालाब के पास रुके. वहां पर उन्होंने उस तालाब के पानी से अपना प्यास बुझाया. और प्यास बुझाने के बाद उस तालाब के किनारे एक बरगद का पेड़ था, तो वो उस बरगद के पेड़ के पास जाकर बैठ गए. अब उन्होंने बोला कि अब टाइम है कि मुझे वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो मुझे साधु ने बताई थी. तो जैसे मुझे साधु ने बताया था कि मुझे ध्यान लगाना है, मुझे वैसा ध्यान लगाना चाहिए. तो वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने लगे, एग्जैक्टली वैसे जैसे उनको साधु ने बताया था. अब वो जब ध्यान लगाने लगे तब उनके हृदय में, इन हिज हार्ट, he got the darshan of Lord Vishnu and he was so happy. भगवान को देखकर, भगवान की, he saw the beautiful lotus like face of the Lord. He became so happy, so ecstatic. उनके पूरे शरीर में कंपन होने लगी, उनके रोंगटे खड़े हो गए. और उनको एक इतनी हैप्पीनेस की फीलिंग आई कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए उस बात को. और इसको फील कर उनके अचानक उनकी आंख खुल गई. और जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा, अरे भगवान तो यहाँ है नहीं. तो उन्होंने दोबारा वही प्रोसेस फॉलो करा जो साधु ने बताया था. सो वी अगेन स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड अगेन थिंकिंग ऑफ गॉड. लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार उनको इतना कोशिश करने के बाद भी उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए. उन्होंने बहुत ट्राई करा कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, मुझे भगवान के दर्शन आए. उन्होंने बहुत कोशिश करी पर नहीं हुए. तो बहुत उदास हो गए. तो जब भगवान ने देखा कि वो उदास है तो उनको एक आवाज सुनाई दी. he heard a sound. तो भगवान ने उनको बोला कि you will not be able to see me again. अब तुम्हें जो दोबारा नहीं देख पाओगे. It is very hard to see me if you still have material desire. I let you see me so that you can remember me and want to see me more and more. यानी मैंने तुम्हें अपने आप को देखने दिया ताकि तुम मुझे याद कर सको और मुझे देखने की और इच्छा रख सको. राइट? अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझे दोबारा देख पाओ तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भक्तों का संग करना है. You should take the association of devotees, and after you take the association of devotee, I promise you that you will come back to me. और तुम्हें जो अगला जन्म मिलेगा उसमें तुम अपने पिछले जन्म को याद कर पाओगे. राइट? तो ये क्वेश्चन व्यासदेव ने पूछा था ना कि ऐसा कैसे है कि आपको अपना पिछला जन्म याद है. तो ये इसलिए है क्योंकि भगवान ने उनको वचन दिया था कि जब तुम साधु संग करोगे तो तुम अगले जन्म में मुझे तो याद कर पाओगे और अपना भी पिछला जन्म याद कर पाओगे. सो वाओ, isn't it amazing? Right? So after that what happened? So जो नारद मुनि है उन्होंने भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा. उन्होंने भगवान की भक्ति करी. अब भगवान की भक्ति करने के 9 स्टेप्स होते हैं जो प्रहलाद महाराज ने दिए हैं. मतलब 9 तरीकों से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं. तो पहला है श्रवणम. श्रवणम जैसे आप सब लोग कर रहे हो. और श्रवणम किसने करा था? परीक्षित महाराज ने करा था. श्रवणम व्यासदेव जी कर रहे हैं.
श्रवणम, वो सारे सेजेस ऑफ नैमिषारण्य कर रहे थे फ्रॉम सुत गोस्वामी. So the first step of one of the steps of bhakti is through shravanam, through hearing. Second step is kirtanam, कि जब हम भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो भगवान की ग्लोरिफिकेशन किस चीज ने करी है? जैसे अगर आप सुनते हो और आप ये सेम स्टोरी लेट्स से आप अपने मम्मी पापा को बताओगे, अपने फ्रेंड्स को बताओगे कि अच्छा आपको पता है नारद मुनि की पुरानी लाइफ में वो क्या थे, तो ये कीर्तन हो गया. तो आप भगवान का कीर्तन कर रहे हो, यानी कि भगवान के बारे में बता रहे हो. ऐसे भगवान का कीर्तन किस किसने करा? शौनक ऋषि ने करा भगवान का कीर्तन, राइट? यस एवियान प्रभु जी, डू यू नो भगवान के कीर्तन और किस किसने करा? Oh, sorry, लेपिंग. Sorry, yes, हाँ. और किस किसने करा भगवान के कीर्तन? माता जी, like Suta Goswami and Srila Shuka Goswami. Yes, that's right. Hari bol. Yes. So Srila Suta Goswami did कीर्तनम, क्योंकि उन्होंने सेजेस को भगवान के बारे में बताया. और हम कर सकते हैं स्मरणम. स्मरणम यानी कि भगवान को याद करना. आप डू यू नो अ डिवोटी जिन्होंने भगवान को याद करा हमेशा, ऑल द टाइम, और ही वाज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द डीमन. एक छोटे से डिवोटी से 5 years के ही थे, उन्होंने हमेशा भगवान को याद करा और वो डीमन से बच गए. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से दैट. मैम प्रहलाद महाराज. Yes, that's right. प्रहलाद महाराज. हरि बोल. और प्रहलाद महाराज की जय. जय. यस. और अगली तरह से हम सेवा करते हैं पाद सेवनम. जैसे लक्ष्मी जी क्या करती हैं? भगवान के हमेशा चरणों की सेवा करती हैं. तो वैसे ही हम भगवान की सेवा सर्विस कर सकते हैं. जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, जैसे भगवान को पानी ऑफर करना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी कि हम भगवान को एक छोटा सा फ्रूट, एक फ्लावर, तुलसी लीफ, वाटर ऑफर कर सकते हैं. हमारे घर में अगर प्लांट्स हैं और उसमें बहुत सुंदर फ्लावर उगाए तो हम भगवान को फ्लावर ऑफर कर सकते हैं. हम अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं भगवान के लिए खाना बनाने के लिए, राइट? सो देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू. Then archanam, that is offering worship. Offering worship. Yes, Diksha Mataji, can I take this? We make garland. Yes, Pranjal Mataji. Can I recite that shloka? हाँ, yes, after this beta, after this, okay? Thank you, Diksha Mataji. Yeah. So उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अर्चनम, जैसे भगवान की पूजा कर सकते हैं. हम भगवान को अगरबत्ती से ऑफर कर सकते हैं, दिया से पूजा कर सकते हैं, है ना? और उसके बाद नेक्स्ट तरह से हम सर्व कर सकते हैं बाय बिकमिंग द दास्यम. तो आपको पता है भगवान के सबसे बेस्ट डिवोटी दास्यम रूप में कौन है? राधा रानी. राधा रानी इज नॉट दास्यम. दास्यम मतलब जो उनको who served him like a servant. वो एक्चुअली माता जी मीराबाई. नो, चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ. उन्होंने नहीं, वो भगवान, वो इतने अच्छे डिवोटी हैं कि वो भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं. उन्होंने एक बार भगवान के लिए श्रीला प्रभुपाद. चलो अच्छा एक और हिंट देती है. वो एक्चुअली भगवान राम के डिवोटी हैं और उन्होंने एक बार अपने आप को पूरा ऑरेंज कलर कर लिया था. हनुमान जी. Yes, हनुमान जी. Yes, that's right, Nishika Mataji. हनुमान जी माता जी. Yes, हनुमान जी. Yes. Hare Krishna Aditi Mataji. Yes. One part of Hanuman ji also, Mom, Hanuman Chalisa. Yes, that's right. Yes, हरि बोल. तो वो हनुमान जी हैं. उसके बाद साख्यम, भगवान के बेस्ट फ्रेंड कौन है जो उनके साथ महाभारत में भी थे? माता जी सुदामा. अर्जुन. Yes, जो उनके साथ रामा. Hanuman Chalisa every night. Hari bol. Very nice. If somebody is Hanuman Chalisa, that's very nice. Yes. So it was Arjun who also came in the form of Nara. Then Atma Nivedanam. Then the next one is when you completely surrender. So अगर किसी को वामन देव की स्टोरी पता है, so they would know that Bali Maharaj had completely surrendered. So Bali Maharaj is the acharya of surrendering. तो ये 9 तरीके हैं जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं. So अब नारद मुनि को ये सब तरीके मिले. श्री प्रहलाद, तो उन्होंने क्या करा? तो उन्होंने भगवान की भक्ति करी अपनी पूरी लाइफ में और उन्होंने साधु संग करा,
हर जगह वो सिर्फ साधु को ढूंढते थे, भगवान के बारे में सुनते थे, बोलते थे। उसके बाद समय आया प्रलय का। सखी चंद्रिका माता जी ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है दैट इज इक्वल टू 14 मनुज, और जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है तो प्रलय आती है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग। तो सारे जो जीव होते हैं भगवान विष्णु के अंदर चले जाते हैं। सो व्हेन द टाइम ऑफ प्रलय केम, ऑल द लिविंग बीइंग्स एंटर्ड इनटू द माउथ ऑफ लॉर्ड विष्णु। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो भगवान विष्णु के अंदर पहुंच गए, तो जब प्रलय का टाइम खत्म हुआ और दोबारा से क्रिएशन का टाइम शुरू हुआ, तो नारद मुनि came out, but when he came out, he was the body that he got, that is the same body that he has right now, and that is the same body that he still has, and in the same body he can travel throughout the universe. वो कहीं पे भी travel कर सकते हैं, स्वर्ग लोक में, he can travel in the planetary system. One second बेटा. So he can travel anywhere in the same body, right? Right? Sorry about that. हाँ, so तो इसी सेम बॉडी में ही is to travel, right? और नारद मुनि जी ने मतलब उसके बाद हम एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आते हैं कि हम भक्ति के भी स्टेजेस होते हैं। तो भक्ति के स्टेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले हमें श्रद्धा होती है, व्हेन वी हैव विश्वास। जब हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो हमें साधु संग मिलता है, यानी कि हमें एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मिलता है। और जब हमें साधु संग मिलता है तो धीरे धीरे हम सुनना शुरू करते हैं, भजन क्रिया, यानी कि वी स्टार्ट लिसनिंग एंड वी स्टार्ट स्पीकिंग। तो व्हेन वी स्टार्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो हमारे जो अनर्थास होते हैं, समटाइम्स वी आर जेलस, sometimes we are not kind, sometimes we have bad mood, sometimes we shout, तो वो सारी bad qualities जो होती है हमारी, we are proud, sometimes we are proud, sometimes we are arrogant, sometimes we are mean, sometimes हमें लगता है कि नहीं हमें ही चाहिए, तो सारी bad qualities चली जाती है। उसके बाद हमें निष्ठा पैदा होती है। निष्ठा का मतलब होता है कि हमें और दृढ़ विश्वास होता है। जब हमें और दृढ़ विश्वास होता है तो हमें रुचि होती है। रुचि मीन्स इंटरेस्ट, आई बिकम मोर इंटरेस्टेड इन भक्ति। एंड देन आसक्ति आती है। आसक्ति का मतलब होता है कि हम किसी चीज के बगैर, हाँ यस आई टेल यू। रुचि का मतलब होता है वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग भक्ति, वी डू इट आउट ऑफ प्लेजर। एंड देन उससे आता है आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है कि हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते, एनीथिंग दैट वी कांट लिव विदाउट। तो वी can't live without hearing about Krishna, about having association with the devotees. और उसके बाद आता है भाव का स्टेज, और भाव के स्टेज के बाद आता है प्रेम का स्टेज। तो ये बेसिकली 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है। तो हमने देखा कि कैसे नारद मुनि के अंदर श्रद्धा थी, तो उनके साधु संग मिला, उसके बाद उन्होंने सुनना शुरू करा, और जैसे उन्होंने सुना उन्होंने खुद ही बताया कि मेरे सारे अनर्थास चले गए। फिर ही हैड निष्ठा, उनको दृढ़ विश्वास था, ही हैड इंटरेस्ट इन भक्ति, एंड ही कुड नॉट लिव विदाउट डूइंग भक्ति, जैसे अब करंटली है नारायण नारायण। सो दैट इज द ओनली थिंग ही डज ऑल द टाइम। नारद मुनि हमेशा सिर्फ भगवान नारायण का नाम लेते हैं, बिकॉज ही लव्स इट, एब्सोल्युटली लव्स इट, बिकॉज ही नोस। हाँ जी बेटा। कैन आई गिव एग्जांपल ऑफ रुचि? हाँ यस बेटा, यस यस बिल्कुल। यस माता जी, example like we are doing chanting and we want to do more chanting, like if we have completed our one round, then we have to do one more round. So this is our interest in bhakti. And when we reading Bhagavad Gita, so like we read daily one page. So today today we want to read one more page. So this is interest in bhakti. Yes, that's right. Hari Bol. Mata ji, who written Hanuman Chalisa? Who's written Hanuman Chalisa? I think Valmiki ji wrote Hanuman Chalisa. I don't know who wrote Hanuman Chalisa. Basically, Hanuman Chalisa is the glories of Lord Hanuman. हनुमान जी का रामायण का ये पार्ट है, रामायण का ही पार्ट है। हाँ जी, रामायण का ही पार्ट है, तो वाल्मीकि जी ने लिखी। वाल्मीकि ने, हाँ थैंक यू माता जी। माता जी, who has written who write the Ramayan?
हाँ यस बेटा, रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने लिखी है। वाल्मीकि जी भी जो है वो नारद मुनि के एक शिष्य ही थे, और उनकी लाइफ भी नारद मुनि जी ने ही चेंज करी थी। वाल्मीकि जी एक एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा, तुलसीदास जी ने लिखी थी मैम। तुलसीदास जी हनुमान लिखी थी। हरी चालीसा बोल, तुलसीदास जी ने लिखी है ना? हरी हरी बोल। यस, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी थी, एक्चुअली रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, और दोबारा उसको तुलसीदास जी ने भी लिखी। तो तुलसीदास जी की जो रामायण है, उन्होंने वो वाल्मीकि की रामायण जी से थोड़ी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वाल्मीकि की रामायण में भगवान राम की ग्लोरीज है, और तुलसीदास जी की रामायण में भगवान के भक्तों की ग्लोरीज है। भगवान राम के भक्तों की ग्लोरीज है तो वो पूरी रामायण ही स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, बट तुलसीदास जी की रामायण में भगवान के भक्तों की ग्लोरीज है, तो उसी में शायद हनुमान चालीसा। यस यस, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच हूएवर सेड दैट। हरी बोल माता जी, माता I जी। want to show something. माता जी हाँ आज yes, गंगा आरती हाँ यस यस, विल डू क्विकली द होमवर्क। वेरी नाइस प्रांजल माता जी, बहुत सुंदर लग रहा है। हरी बोल। I want to ask Mataji, what is the last highlight from my meeting? I was not connected. Yes, yes. माता जी प्रभुपाद जी ने नहीं लिखी रामायण? नहीं नहीं बेटा, प्रभुपाद जी ने रामायण नहीं लिखी। रामायण तो वाल्मीकि जी और तुलसीदास ने लिखी थी। प्रभुपाद जी ने उसको, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करा था हमारे लिए। ठीक है, तो ओके, सो somebody asked कि हम एक रिकैप कर सकते हैं। वी विल डू अ रिकैप। हम सबसे पहले क्विज कर लेते हैं, उसके बाद वी विल डू अ रिकैप, एंड देयर इज टुडेज एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आई एम एक्साइटेड अबाउट यस यस यस, माता जी Ma'am, we can start the quiz now. हाँ वी कैन स्टार्ट द माता जी आई एम टू मच एक्साइटेड। हरी बोल। माता जी, excuse me. हाँ जी बेटा, यस। Mata ji, have you discussed who wrote about Hanuman Chalisa, because I was not able to hear. हाँ यस यस, तुलसीदास जी wrote about हनुमान चालीसा, क्योंकि तुलसीदास जी ने माता जी who has written गंगा आरती किसने लिखी है? गौरा आरती, आई विल टेल यू, वैष्णव पदावली में मिल जाएगा गौरा आरती किसने लिखी है। वो किसी डिवोटी ने ही लिखी है, आई टेल यू। हाँ, मुझे भी माता जी किसी ने बताया था कि इन्होंने लिखी है, बट मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, डोंट वरी, आई विल टेल यू दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्विज। उसके बाद हम एक क्विक रिकैप करेंगे और आज की एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि जो आज की एक्टिविटी है, अगर हम रिकैप नहीं करेंगे तो हम आज की एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे। ओके, so let's start with the quiz. I think the frogs are waiting for us. Frog की आवाज आ रही है। Okay. So the first question is, what secret did Brahmanas told Narad? तो जो ब्राह्मणास थे, उन्होंने नारद को कौन सा सीक्रेट था? माता जी, there is not question. Yes, Nag. Mata ji, about devotional service to Krishna will make you happiest and end of your military. Yes, माता जी। ये तो नहीं था ना, merging with Lord Krishna will make us happiest. No, माता जी, it's A. स्वर्ग लोक का नहीं था ना? No, माता जी, it's A. Okay, I thought स्वर्ग लोक जाने से हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। नहीं, माता जी, स्वर्ग So who was Narad really attached to? तो नारद मुनि किससे अटैच थे जब वो छोटे बॉय थे? काऊ नहीं था ना? Okay. Then how did his mother leave his body? तो उनकी mother को, how did his mother leave? Because he was killed by the cow. माता जी C1. How did Narad see this incident? तो नारद मुनि ने कैसे सोचा? उन्होंने बोला कि मेरी मदर का कर्मा है। He said the serpents are, सारे सांप बुरे हैं, they should be punished. Or did he see this as mercy of the king? माता जी माता जी C. हरी बोल। Okay. What did he do after the death? तो उन्होंने क्या करा? वो he cried for 5 days.
He searched for the Brahmanas. Mataji, he traveled. Traveled north. वो उत्तर दिशा में ट्रैवल करने लगे. A1. Okay. Narad sat under a banyan tree and began to make home Meditate on Krishna and Meditate on Krishna and the Brahmanas. Okay, Hari bol. Okay. Yes, okay. What did Narad Muni see? तो नारद मुनि ने क्या देखा? उन्होंने देखा लॉर्ड कृष्णा, उनको पेड़ के ऊपर लॉर्ड कृष्णा दिखाई दिए. Lord Krishna in his heart. Option B. In his heart. Lord Krishna. Lord Krishna in the heart. Lord Krishna in the heart. Lord Krishna in the heart. Hari bol. Okay. What did Narad Muni do when Lord disappeared? उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया, खाना पीना शुरू कर दिया. Again and again. उन्होंने दोबारा कोशिश करी कि उनको भगवान दोबारा दिख जाए. राइट. ओके. व्हाई वाज इट हार्ड फॉर नारद मुनि टू सी कृष्णा? तो कृष्णा ने क्यों बताया, क्या बताया कि आप नहीं देख पा रहे हो मुझे? Because he still had material desires. Yes. Still had material desires. Option Yes. Perfect. Okay. Then how did Narad Muni remember Krishna in the next life? ऐसा कैसे था कि नारद मुनि जो है वो अपने पिछले जन्म को याद कर सकते थे? I thought he had a very good memory. Very bol. Yes, well done. All of you remember. Perfect. Okay, so let's move on to today's activity. आज की एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो हमें क्या करना है कि हमने जो छोटे सा बॉय था, जो नारद मुनि था, 5 years old था, उनकी हमने कुछ एक्टिविटीज आज डिस्कस करी कि नारद मुनि अपने पिछले जन्म में he was small boy. तो हमें वो एक्टिविटीज को लिखना है और ड्रॉ करना है. ठीक है. ये कुछ हेल्पिंग वर्ड्स हैं, आपको इससे मदद मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ही वॉज वेल बिहेव. तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है वेल बिहेव और इसके आगे वेल बिहेव की एक ड्राइंग बनानी है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेक दिस, राइट, लाइक अ वेल बिहेव. हाँ जी बेटा, ये अभी करना है. हाँ, ये अभी करना है. वी कैन स्टार्ट इट टुडे एंड देन यू कैन डू इट इन द होमवर्क. ओके माता जी, व्हाट इज द होमवर्क? यही होमवर्क है. और एक और चीज होमवर्क है, आप पहले ही समझ लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द होमवर्क. ठीक है, विल डू दिस टुगेदर. Mataji, please can you explain the whole homework, because Mataji, I want to I have to take a time for study. Yes, sure. So I'll explain you the homework at the same time. Okay, ये एक्टिविटी हमें अभी करनी है. मैं एक बार दोबारा समझा दूंगी. होमवर्क में हमें क्या करना है कि और होमवर्क हमें क्या करना है? क्लासवर्क. हाँ, यस, विल डू बोथ ऑफ देम. तो मैं एक बार होमवर्क बता देती हूँ. हमें होमवर्क में क्या करना है. होमवर्क में मैं आपको ये भेजूंगी, इसको फिल करना है. तो अब हमें लिखना है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड वी बिकेम अ डिवोटी, यानी हमें भगवान कृष्ण के बारे में कैसे पता चला. तो आप बता सकते हो कि जैसे कि आपने भगवत गीता 18 डे समर कैंप ज्वाइन करा था, पर वो आपको कैसे ज्वाइन करा आपने? किसी ने आपको उसके बारे में बताया, आपके किसी फ्रेंड ने बताया, आपको व्हाट्सएप मैसेज आया? जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, लेट्स से मुझे ये फिल करना है. बेसिकली हमें ये अपनी स्क्रैप बुक में लिखना है. तो लेट्स से मैं अगर बोलूंगी कि हाउ डिड आई बिकेम अ डिवोटी, हाउ डिड आई कम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो मैं लिखूंगी कि मैं अपनी ऑफिस के कलीग के साथ
I was arguing, and then she told me to read Bhagavad Gita. So when I read Bhagavad Gita, I realized that I'm not the body and I'm the soul. ठीक है? Then what made you want to become the devotee? ऐसा क्या आपने करा या ऐसा क्या आपको अच्छा लगा कि आप और भगवान के बारे में जानना चाहते हो? तो वो आप लिख सकते हो. उसके बाद है हैव यू एवर हैड एनी मेजर चैलेंज और डिफिकल्टी टू डील विद? ऐसा कुछ हुआ जो बहुत मुश्किल था लाइफ में, तो उसको कैसे डील करा हमने? Then how can you remember times when you really felt Krishna present? ऐसा कभी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, आपको लगा कि हाँ सच में भगवान was there to protect me at that point of time? तो वो लिखना है. ठीक है? Then what do you love doing the most in spiritual life? तो आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है करना? तो कुछ लेट्स से आप कह सकते हो कि मुझे तुलसी में पानी देना सबसे अच्छा लगता है, भगवान को फ्लावर देना अच्छा लगता है, भगवान को न्यू ड्रेसेस बनाना बहुत अच्छा लगता है, या भगवान के लिए कुछ बनाना बहुत अच्छा लगता है. So what is it that you like doing the most? Anything. Then what do you see yourself doing in the future? तो आगे आप क्या देखते हो अपने आप को? ठीक है? तो ये बेसिकली ये सब चीजें हमें लिखनी है एज होमवर्क. आई विल सेंड यू माइन, जो मैं अपना आपको बनाकर भेजूंगी, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करना है. आपको सबको समझ आ गया? यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, Mata. You're unmuted. Yes, Mataji. Yes, Mataji. It's interesting that we are saying about how we came into Yes, because when we think about our life, we'll have many realizations. लेकिन अभी हमें क्या करना है? अभी हमें ये करना है. तो हमें बेसिकली इकट्ठे हमें नारद मुनि की लाइफ के डिफरेंट स्टेप्स लिखने हैं और ड्राइंग बनानी है. आगे भी बनानी है. जैसे ये जो स्टेप्स है, दिस इज ओनली एंडिंग वेयर ही गॉट इंस्ट्रक्शंस, जब उनको ब्राह्मणा से इंस्ट्रक्शन मिली. पर इसके बाद क्या हुआ वो भी लिखना है. तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि नारद मुनि's मदर डाइड. उसके बाद ही वेंट नॉर्थ, वहां पर वो जंगलों से गुजरे, उन्होंने मेडिटेशन करी. तो ये हम लिखकर ड्रॉ कर सकते हैं. इट बी वेरी सिंपल. डू यू वांट टू स्टार्ट विद इट? बहुत सिंपल है. ठीक है? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लिखना है फर्स्ट थिंग. सबसे पहले ही वॉज अ वेल बिहेव बॉय. तो हम लिखेंगे वेल बिहेव और उसके आगे उसकी ड्रॉइंग बना देंगे. ठीक है? तो वेल बिहेव एंड ड्रॉइंग. Mataji, is there another activity about can I leave? Two activities. Yes, beta, you can leave. So, बोलो बेटा. Mataji, there are two activities. एक बेटा वो एक्टिविटी है जो हमें क्लास में करनी है और एक होमवर्क है. और अगर आपकी क्लास में एक्टिविटी ये खत्म नहीं होती तो आप दोनों एज अ होमवर्क कर सकते हो. सो यस, देयर आर टू एक्टिविटीज. यस, यू राइट. Okay, Mataji. So ठीक है? यू हैव 1 week टू कंप्लीट इट. हाँ, ठीक है. अब लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. सबसे पहले हमें लिखना है वेल बिहेव्ड और आगे उसकी ड्राइंग बनानी है. Mataji, can I leave? हाँ, यस यू कैन लीव एंड द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन you can do it together. मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हो. आप लोगों को समझ आ गया ना बेटा? You are all on unmute. If you have any confusion आप मुझे बता. हाँ, yes. Mataji, Hare Krishna. Sorry, Mataji. Hare Krishna बेटा. Mataji, can we make this photo in front of well behaved? दिखाओ बेटा. Mataji, I have not made, but this one, जो Mataji प्रसादम के ऊपर वाली है. ये वाली बेसिकली फोटो है सर्विंग द डिवोटीज. सो व्हाट इज ही डूइंग? ही सर्विंग द डिवोटीज, है ना? So Mataji, what we can make? हाँ, ये सॉरी सबसे नीचे वाली आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा? सबसे नीचे वाला ये है वेल बिहेव. Yes. Okay, Mataji. Thank you. ठीक है. हाँ, वेलकम. ओके, सो वी कैन डू दिस. सो हम बना सकते हैं वेल बिहेव बॉय, नारद मुनि. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. दंड प्रणाम. प्रणाम माता जी. जब मीटिंग ऑफ करनी हो तो 5 मिनट पहले बता देना, क्योंकि मैंने बच्चों के नाम लिखे हैं ना जिनकी वीडियोस ऑन रही हैं पूरी क्लास में, उनका ड्रॉ निकालना है. ठीक है माता जी, आप बता सकते हो, क्योंकि फिर बच्चे फिर धीरे धीरे आई थिंक लीव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये काम या तो वो अभी करेंगे या घर जाकर भी कर सकते हैं. तो आप अभी बता सकते हो. ठीक है, मैं पर्ची का. हाँ, ठीक है.
Hari bol. Mataji, what about lucky draw? वो अभी माता जी बताएंगे. Don't worry, wait. लकी ड्रॉ में नाम निकला है वृंदा सोनी का. हरि बोल. हरि हरि बोल. वृंदा माता जी की जय. माता जी. You're the lucky वृंदा girl. माता जी, मतलब कि हमने एक गिफ्ट रखा है, लेकिन क्या है ना कि या तो आप अपना एड्रेस मुझे सेंड कर देना, आपके घर पहुंच जाएगा. आप कहाँ रहते हो? अशोक विहार. अशोक विहार. ओके, ठीक है. आप ग्रुप पे अपना एड्रेस सेंड कर देना, आपके घर गिफ्ट पहुंच जाएगा. ठीक है. ऐसे ही सभी बच्चे जो है ऑनलाइन वीडियो ऑन करके बैठेंगे पूरी क्लास में, तो हर संडे को जो है सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है वो निकलेगा. ओके. थैंक यू माता जी. थैंक यू सो मच. ठीक है माता जी, हो गया. कृष्ण माता जी. सो मैंने ना फर्स्ट उसकी ड्राइंग बनाई है. आई शेयर विद यू कि मैंने क्या बनाया. लेट मी सेंड इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है. ठीक है. ऐसे करके फर्स्ट वेल बिहेव. मैम आई विल शो द माय ड्राइंग. हाँ, यस. माता जी, कैन यू शो योर ड्राइंग? हाँ, मैंने बेटा व्हाट्सएप में भेजा अभी, व्हाट्सएप ग्रुप में. ओके माता जी. माता जी, दिस इज माय ड्राइंग. Oh, हरी बोल प्रांजल माता जी. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. परफेक्ट, परफेक्ट. ओके, मे बी शायद मैंने आपको ढंग से एक्सप्लेन नहीं करा. आपको वन पेज में ना बहुत सारी ड्राइंग बनानी है. ऐसे तो बहुत सारे पेजेस लग जाएंगे. लेट मी शो यू. आप एक बार व्हाट्सएप. अच्छा, लेट मी शो यू हियर फ्रॉम हियर. एक सेकंड बेटा. माता जी, आई हैव आल्सो ड्रॉन. हाँ, यस, दैट्स राइट. दैट्स वो बिल्कुल ठीक है. ये किसी वृंदा माता जी. हाँ, ऐसे बनाना है. माय ड्राइंग. यस प्रांजल माता जी, परफेक्ट. पर हम इसको ना थोड़ा छोटा छोटा बनाना है. लेट मी एक मिनट ओपन व्हाट्सएप एंड आई विल शो यू. मैम, हाँ जी बेटा. यस मैम, आई मेक दिस ड्राइंग. हाँ, 1 सेकंड. देखो, आपको मेरा दिखाई दे रहा है. मैं एक मिनट भी डाउनलोड. यस माता जी. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. नहीं बेटा, मैं वो नहीं बताना चाह रही. मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको एक पेज में बहुत सारी चीजें ड्रॉ करनी है. मतलब सिर्फ एक पेज में. देखो, अब मैंने क्या करा. तो एक पेज में सबसे पहले लिखा मैंने वेल बिहेव. ओहो, कितनी बार घूम गया. ठीक है. अब इसी 1 पेज में मैं नीचे सेकंड टॉपिक लिखूंगी. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर वेल बिहेव. तो एक ही पेज में 2 या 3 या 4 पिक्चर्स बन जाएंगी. तो हमें बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनानी. हमें कैन यू सेंड ऑल द पिक्चर्स? हाँ, यस, आई विल सेंड इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो. 1 सेकंड बेटा. मैम, दिस वन. हाँ बेटा, 1 सेकंड, आई विल सेंड. पहले आपको बात समझ आ गई ना बेटा. आपको क्या करना है कि 1 पेज में ही फर्स्ट एक्टिविटी लाइक से वेल बिहेव. सेकंड उन्होंने क्या करा था. ही सर्व द डिवोटीज. तो सेकंड में लिखूंगी सर्व डिवोटीज. सो लेट मी राइट विद अ डिफरेंट sketch pen. Okay, so I'll write served devotee. Mataji, my first photo is too big, but next time I will make too small. हाँ. सर्व डिवोटीज. और सर्विंग डिवोटीज की हम जो पिक्चर्स हैं हम ये स्टिक ड्राइंग बना सकते हैं. जैसे आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, तो मैं तो स्टिक ड्राइंग बनाऊंगी. ठीक है. No, Mataji, your drawing is very beautiful. नहीं बेटा, आई एम नॉट. तो आई विल मेक अ स्टिक ड्राइंग हियर. Mataji, I want to ask that. हाँ जी बेटा. Mataji, when जैसे नारद मुनि जब व्यासदेव को बता रहे थे कि आप मतलब जैसे नारद मुनि ने उनसे वो ली थी इंस्ट्रक्शंस, तो माताजी उनकी भी कुछ जो क्वालिटीज थी यानी कि डिवाइन क्वालिटीज वो नारद मुनि में आ गई थी. यस, तो यस, बिल्कुल. माताजी, लाइक वी आर टेकिंग क्लासेस, लाइक यू आर टेलिंग अबाउट Bhagavatam or like about Krishna's devotees. So Mataji, your divine qualities also come into us
Hari bol. So no, actually I don't have any divine qualities, but because we are hearing about Krishna, so Krishna's divine qualities, his pure devotees divine quality, जैसे Srila Prabhupada's divine qualities come into us. जैसे हम नारद मुनि के बारे में सुन रहे हैं तो हमारे अंदर नारद मुनि की डिवाइन क्वालिटीज आ रही है. You know, आपको पता है ये कहा जाता है कि हम जिस भी भक्त के बारे में सुनते हैं हमें उस भक्त की 1% क्वालिटीज मिल जाती है. तो अभी हमने नारद मुनि के बारे में सुना तो हम सब में 1% क्वालिटी ऑफ नारद मुनि की जो गुड क्वालिटीज है उसका 1% आ गया. यस यस भव्य माता जी, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. लेट मी स्पॉटलाइट इट. यस हरि बोल. सो ऐसे ही हम जिस भी भक्त के बारे में सुनते हैं हमें उसकी क्वालिटीज मिल जाती है. नहीं, हमें सारी बनानी है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. हमें स्टेप्स लिखने हैं नारद मुनि की स्पिरिचुअल जर्नी की स्टेप्स. तो ये स्टेप्स लिखने हैं और साथ में ड्राइंग बनानी है. सो आई एम आल्सो डूइंग इट साथ साथ. ठीक है, मैंने सेकंड वाली बना ली. आई विल शो यू कैसे करना है. ठीक है, 1 सेकंड. Mataji, I have also made. हरि बोल हरि बोल. नहीं, आई जस्ट वांट टू शो यू कि कैसे एक पेज में एक से ज्यादा बनाना है. Okay, let me download it here and show it to you. Mataji, it's very beautiful. Yes, Mataji. नहीं बेटा नहीं. It's what I'm just trying to show is कि कैसे हमें पूरी नारद मुनि की स्पिरिचुअल जर्नी लिखनी है. ठीक है, जैसे अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो मैंने 2 चीजें लिखी. वेल बिहेव, सर्व डिवोटीज. अब उसके बाद नीचे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आफ्टर द सर्विंग डिवोटीज. आप अपने पिक्चर को दोबारा लगा दो. हाँ यस, आई विल जस्ट शो यू. उसके बाद उन्होंने टुक प्रसादम. तो अब हम थर्ड स्टेप लिखेंगे टुक प्रसादम. इधर लिखेंगे टुक प्रसादम और प्रसादम की फोटो डालेंगे. फिर फोर्थ स्टेप लिखेंगे. फोर्थ स्टेप क्या हुआ? फिर उनको he heard from the stages attentively. तो उन्होंने सेजेस से सुना. तो हम ये कान, जैसे कान बना हुआ है और वहां पर हम दिखा सकते हैं. एक्चुअली वी कैन शो एक छोटे से बॉय पर दिखा सकते हैं और वहां पर सेजेस दिखा सकते हैं. वी कैन सी कि ही इज हियरिंग. एक कान दिखा सकते हैं कि वो सुन रहे हैं, मतलब हम ड्रॉ कर सकते हैं. उसके बाद उन्होंने क्या करा? ही वाज कंट्रोल्ड इन हिज सेंसेस. तो उन्होंने ही वाज, ये पिक्चर है ना यहाँ पर जहाँ पर ही ध्यान लगा रहे हैं. ही वाज कंट्रोल्ड. हाँ yes yes, you can show me drawing. Then he had strong faith and then he took instructions. ये है 1 2 3 4 5 6. ये took instructions. हाँ बेटा, I'll just see your drawing. Just one, I just want to explain you one thing. तो ये इसके आगे भी हमें लिखना है कि कैसे उनकी मदर की डेथ हो गई. फिर वो चलने लगे, जंगलों के थ्रू गए और उसके बाद जब वो जंगलों के थ्रू गए उसके बाद उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान किया, बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करा. तो उस सब की ड्राइंग्स बनानी है. ओके, यस, लेट मी स्टॉप शेयरिंग. निशिका माता जी, यू वांट टू शो? यस, हरि बोल. able to see? यस यस, 1 सेकंड बेटा. लेट मी स्पॉटलाइट योर वीडियो. Mataji, you will send the link of the quiz in the group also. हाँ yes बेटा, I will. Ma'am, I will, yes yes. ma'am, I will make this drawing. हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस. यस हरि बोल. तो ऐसे करके सारे स्टेप्स लेकिन ऑर्डर में लिखने हैं. ठीक है, हमें सही ऑर्डर में स्टेप्स लिखने हैं कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. Mataji, after drawing these, then we have to make a call out. In that we have to show what we have represented. हाँ yes कार्तिक प्रभु जी, yes yes yes, that's Okay, right. Mataji. So I will show you. I will also share mine in the, you know, in the बनाने के बाद I will share mine in the group as well so that all of you can see. So serve devotees के बाद उन्होंने क्या करा? Took their prasadam. So I'll write took their. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, in the last one took instruction. Ma'am, what's the drawing of that? ये बेटा ये जो चेकलिस्ट बनी हुई है ना, ये तो इंस्ट्रक्शन क्या मिली? 1 2 3 4 5. आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. तो ये मैम, बट ये ड्राइंग लाइन वाइज नहीं बनी. लाइन वाइज नहीं बनी बेटा, लाइन वाइज नहीं है, ये जम्बल्ड है.
ये ड्राइंग माता जंबल जी, है और ये वर्ड्स अलग अलग लिखे हुए हैं। हाँ जी बेटा, यस यस। माता जी, कैन यू सी माय हाँ सब यस डिवोटी? बेटा, 1 सेकेंड बेटा। हाँ, हरी बोल, वेरी नाइस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल माता जी, दैट इज सो ब्यूटीफुल। हरी बोल भव्या माता जी, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। माता जी, ये बहुत छोटा है तो माता जी वो ऊपर वाला यू ज्यादा विल बड़ा हैव टू होगा यूज तो 2-3। हाँ नहीं नहीं, परफेक्ट है, दैट्स परफेक्टली फाइन। आप 2-3 पेजेस यूज कर सकते हो, बिकॉज मैं भी 2-3 पेजेस यूज करूंगी इसको पूरा बनाने के लिए, ठीक है? ओके माता जी। ओके, सो टुक माता देयर, जी, which is third one? टुक देयर Took their प्रसादम। prasadam. Yes. ठीक है, टुक दे प्रसादम में आप ये प्रसाद की पिक्चर बना सकते हो, और यू कैन मेक अ स्मॉल छोटा बॉय आल्सो। स्टिक मैन से आप छोटा सा बॉय भी बना सकते हो, प्रसादम दोनों बना सकते हो। ओके माता जी। माता जी, if you don't mind, हाँ जी बेटा। Ma'am, what is the fourth one? हाँ यस बेटा, फोर्थ वन है, मैंने फोर्थ वन है हर्ड द सेजेस अटेंटिवली। हर्ड द सेजेस अटेंटिवली, इसके लिए आप एक Okay, ma'am. ईयर भी बना सकते हो, आप सेजेस भी बना सकते हो। यस भव्या माता जी, सॉरी आप क्या कह रहे थे बेटा? Yes, Mataji. Mataji, I was saying last time I have asked the question. हाँ बेटा, I still have to answer that. I will answer their question. मैं आपसे मे बी एक्चुअली मुझे ना टाइम नहीं मिला, लास्ट वीक मेरा बहुत बिजी था ऑफिस में। इनफैक्ट अभी Don't मैंने worry, डायलॉग्स Mataji. भी, हाँ डायलॉग्स भी मैंने थोड़ा लेट Yes. भेजे, बट आई विल कॉल यू एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट। Yes, yes, Mataji. Mataji, what is the fifth one? हाँ बेटा, फिफ्थ वन है कि ही कंट्रोल्ड हिज सेंसेस, कंट्रोल्ड सेंसेस। Mataji, tomorrow is Jagannath Rath Yatra. हाँ यस, टुमारो इज जगन्नाथ यात्रा था, हरि बोल। गॉट ठीक है, सो 1 2 3 okay, so fourth step is heard sages attentive. Mataji, can you show your took their prasadam third one? हाँ यस बेटा, हाँ एक सेकेंड बेटा। Yes, Mataji. I just send my picture अभी तक की। Mataji. ऐसे तो बोलते ही उठ जाओ। हरे कृष्णा, यस बेटा, एक मिनट, मैंने व्हाट्सएप में भेजा है, मैं इसको डाउनलोड करती हूँ। हाँ जी बेटा। माताजी, जैसे मैंने यहाँ पर 3 बना, मतलब सब डिवोटीज टेक देयर प्रसादम। माताजी, मुझे यहाँ बनाना है या नेक्स्ट पेज पे? आप नेक्स्ट पेज में बना सकते हो। नाउ यू कैन मेक अ नेक्स्ट पेज, क्योंकि मेरे भी एक पेज में 4 एक्टिविटीज आई है। हम नेक्स्ट एक्टिविटी में नेक्स्ट पेज में बनाऊंगी, ठीक है? जैसे अगर आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन, यू आर एबल टू सी?
Yes, yes, माता जी. है ना. सो ऐसे कर अब माता मैं जी, it's very beautiful. नहीं बेटा, इट्स नॉट ब्यूटीफुल. अब नेक्स्ट जो है वो मैं अगले पेज में बनाऊंगी कि नेक्स्ट 5th एक्टिविटी 5th 6th 7th एंड आगे भी कंटिन्यू करना है इन द सेंस कि जब नारद मुनि ही वेंट टू द ही वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ, जब वो उत्तर दिशा में चलने लगे और वो फिर उन्होंने जंगलों से गुजरे, वो सब भी ड्रॉ करना है. ठीक है. Yes, माता जी. आई विल शेयर दिस. हाँ जी बेटा. माता जी, जैसे हमने लास्ट टाइम प्ले कार्ड्स बनाए थे, वो प्ले कार्ड्स, तो माता जी हम और भी प्ले कार्ड्स बनाएंगे. हाँ, यस यस, आई वाज अबाउट टू से, सॉरी. तो हमें